Hello everyone, am I audible? Can somebody just let me know if I'm audible? Okay, thank you so much. So let's kick off today's session. Today we are going to be having a small session about building our first AI product. It's going to be a very beginner friendly session जिसके अंदर हम अपना एक छोटा सा project बनाएंगे leveraging AI and we will see कि किस तरह हम इस तरह के और projects या products बना सकते हैं. And इसके through even if you don't get all the understanding in one go, आपको थोड़ा सा समझ आ जाएगा कि किस तरह आप अपने छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो आप AI के थ्रू बना पाएंगे और इससे you will be able to kind of expand your thinking about आपकी curiosity जो होगी वो kick in हो जाएगी इससे कि हम किस तरह AI के थ्रू खुद से कुछ बैठे हुए develop कर सकते हैं without even having any understanding या without having all the knowledge about AI or about computer science or about programming even. In today's day and age, we need to know okay, we don't need to know or we don't need to hold a computer science degree or a very fancy certification to develop projects or products. Byte coding का era है and आज हम उसी को beginning करेंगे उसकी और हम एक छोटा सा fun सा project बनाएंगे that I have for you guys और मैंने उसकी जो build guide भी है it's with me so I'm going to be sharing that project building guide with you guys as well. Session के end के ऊपर जिसके अंदर there's a step by step method कि आप किस तरह वो project बना पाएंगे और उसके end के ऊपर I've also included some other ideas that you guys can read and see that हम ये हम बना चुके हैं पर हम ये भी बना के try करते हैं. So first of all, I'm going to begin with a little bit of my introduction. So my name is Fatma Khan. I am a graduate of FAST Islamabad. My degree was in computer science. It's been almost 1 year since I've been working as an AI engineer, and currently I'm building AI tools for education and edtech. I recently started running the AI Data Yard learning community, and my work here is just going to be making AI accessible for everyone, no matter at what stage you are at your career or what field you are in, ki stream mein hai aap, but in this session or through these sessions, we're going to learn that you don't have to be an expert in this to make your projects or to kick this off. You just need to have a basic understanding and you just need to have the will to learn. तो आई हैव मेड अ स्मॉल एजेंडा यहाँ पे. तो आज हम लोग कुछ छोटे मोटे कॉन्सेप्ट्स के ऊपर टच अपॉन करेंगे. वी गोना कीप इट वेरी लाइट एंड वी गोना कीप टेक्निकल जार्गन को थोड़ा सा साइड पे. आई एम गोना बी मेकिंग एन एक्टिव एफर्ट कि कोई ज़्यादा टेक्निकल टर्म्स ना मैं थ्रो करूँ और बहुत इसको बेसिक रखूँ. एंड फिर हम लोग इसको लाइव बिल्ड करेंगे, डिप्लॉय करेंगे, फिर उसका डेमो करेंगे और एंड के ऊपर हमारे पास एक छोटा सा Q&A सेशन होगा. So before we begin, I just want to just lightly touch upon some things. आजकल we hear about two words very frequently. Chatbot बना लिया किसी ने या किसी ने agent बना लिया. तो let's first understand कि इनमें फ़र्क क्या है. तो chatbot is just like you are talking to someone, right? तो मैं किसी से कोई बात कर रही हूँ, सवाल पूछ रही हूँ, conversation कर रही हूँ. तो based on whatever I'm asking or saying, they're just gonna give me a response. तो chatbot के अंदर यूजर जो है अपने एंड से एक मैसेज भेजेगा, एआई आपके उस मैसेज को देखेगा और उसका रिस्पॉन्ड करेगा आपको, और यही उसका पूरा मैकेनिज्म है. चैटबॉट से हमारे पास क्या होता है, आपके एंड से एक मैसेज जाता है और आपको एक रिस्पॉन्स मिलता है. जैसे आप अपनी रूटीन के अंदर मेटा से या फिर चैट जीपीटी से कॉन्वर्सेशंस करते हैं या हेल्प लेते हैं, तो उसके अंदर आपके एंड से सिर्फ एक मैसेज जा रहा होता है और आपको उसका रिस्पॉन्स मिल रहा होता है. सो दैट्स व्हाट अ चैटबॉट इज. But recently we've been hearing a lot about agents कि agents क्या होते हैं. तो the difference between an agent and a chatbot is कि एक agent जो है वो आपकी instructions के ऊपर काफी कुछ कर भी सकता है. यानी कि अगर चैट जीपीटी है वो मुझे सिर्फ मेरे डेली मसाइल के हल बता रहा है. जैसे मैंने उसको बोल दिया कि मेरे से वर्ड के अंदर पेज नहीं रिमूव हो रहा, तो वो मुझे बस बता देगा कि आप ये कर लो तो वो रिमूव हो जाएगा. लेकिन अगर एक एजेंट ये करना चाहे तो वो मेरे वर्ड डॉक्यूमेंट का होल्ड लेगा और खुद से उस पेज को रिमूव करेगा. सो दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन चैटबॉट and an agent. Now, what we're going to be leveraging tonight to be creating our project is going to be an LLM. Now, first, let's learn about what an LLM is.
सो एन LLM it stands for large language model, और इसकी एक एनालॉजी अगर हम डेवलप करना चाहें तो ऐसे है कि जैसे एक इंसान है जिसने दुनिया की सारा, आपने उसको लिटरेचर पढ़ाया हुआ है या उसको लाइक हर तरह की नॉलेज है, कह लो लाइक एक तरह का विकिपीडिया है, लाइक इट हैज लाइक वास्ट नॉलेज, आपने उसको सब कुछ सिखाया हुआ है। तो आप उससे क्वेश्चन पूछते हो और बेस्ड ऑन ऑल ऑफ दैट नॉलेज दैट इट हैज वो आपको उसका रिस्पॉन्स दे देता है। तो एक LLM जो है इट्स अ सिस्टम दैट्स ट्रेन्ड ऑन टेक्स्ट। ट्रेनिंग का मतलब क्या है कि उसको बस हमने ढेर सारा डेटा जो है वो फीड किया हुआ है, उसको दिया हुआ है, और वो जब भी आप उससे कुछ सवाल पूछते हो, कुछ इन्फॉर्मेशन मांगते हो, कुछ बातचीत करते हो, तो बेस्ड ऑन ऑल ऑफ दैट डेटा दैट इट ऑलरेडी हैज, प्रोबेबिलिस्टिकली वो आपको जो है, जो उसको आंसर उसको ठीक लगता है वो आपको आंसर दे देता है। नाउ आई वांट टू से समथिंग दैट artificial intelligence, yes, हम कहते हैं कि like LLM is a part of that and it's artificially intelligent, but at the root of it, it's neither artificial nor intelligent. Artificial कैसे नहीं है? क्योंकि हमने ही उसको वो डेटा दिया है और जिसकी बेस के ऊपर वो हमें रिस्पॉन्ड करेगा। और इंटेलिजेंट क्यों नहीं है? क्योंकि इट्स जस्ट लाइक अ बेसिक इनपुट आउटपुट मशीन, इट्स अ वेरी सोफिस्टिकेटेड इनपुट आउटपुट मशीन, इट्स जस्ट मैथ्स और इट वर्क्स ऑन प्रोबेबिलिटी। तो ऐसा नहीं है कि कोई मैजिक से कुछ हो रहा है, ये सिर्फ एक इनपुट आउटपुट मशीन ही है। सो आपके पास अगर एग्जाम्पल ले लें तो हमारे पास चैट जीपीटी, क्लॉड, जेमिनाई, ये सब क्या हैं? ये LLMs हैं। They're trained on a lot of textual data and based on that they give us the जो भी probabilistic answer होता है वो हमें मिल जाता है। Now here are the different LLMs that we can use. आज जो हम यूज करेंगे it's gonna be Llama 3, Grok का। Why are we gonna be using it? Is because it's a decent model and above all it's free. So you don't need to be topping it up with any money to use it. You can just use it for free. लेकिन इसके अलावा कुछ LLMs that can be used are GPT-4o, that's by OpenAI, Claude का Anthropic, it's very famous these days, Gemini by Google, Mistral by Mistral AI, and Quinn by Alibaba. So at the basic level, ये सारे जो हैं इनकी functionality is the same, लेकिन इन सब के कुछ different perks हैं। जैसे Claude is considered very good for coding purposes, और जो GPT के मॉडल्स हैं, और जो चैट GPT is very like emotionally intelligent if you want to use it, जो डेली लाइफ में अपना यूज कर सकते हैं। सो एट द बेसिक लेवल दे आर ऑल द सेम, लेकिन इन सब के कुछ ना कुछ पर्क्स हैं, और इन सब की जो कॉस्टिंग है वो भी बिल्कुल डिफरेंट है एक दूसरे से। कुछ के अंदर इट्स टोटली पेड, कुछ के अंदर आपके पास फ्री टीयर्स भी मौजूद हैं, पेड टीयर्स भी मौजूद हैं, एंड सम ऑफ देम आर कंप्लीटली फ्री। अब हम किस तरह यूज कर रहे होंगे? अब जैसे ये मैंने आपको बता दिया कि टुनाइट वी गोना बी यूजिंग Llama 3 by Grok, लेकिन हाँ विल वी बी यूजिंग इट? तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? हमें एक की चाहिए। सो फॉर एग्जाम्पल लाइक इमेजिन के एक Grok का एक कंप्यूटर है जो कहीं पड़ा हुआ है, जिसके अंदर उसका सारा नॉलेज इट्स फेड, बट हाउ डू आई यूज इट? फॉर दैट आई नीड टू हैव एन API की। तो Grok की वेबसाइट पे मैं जाऊंगी और मैं उससे कहूंगी यार मुझे की दे दो, और जब भी मैं अपनी ऐप के थ्रू कोई रिक्वेस्ट उस की के साथ भेजूंगी तो Grok कहेगा कि हाँ यार ये एक लेजिटिमेट रिक्वेस्ट आ रही है, और इसको हम जो है अपना रिस्पॉन्स प्रोवाइड कर देते हैं। तो वो की बड़ी इंपॉर्टेंट है, एंड दैट की इज सीक्रेट। एंड व्हाट यू नीड टू डू इज कि जब भी हम अपना प्रोजेक्ट बना रहे होंगे तो वी हैव टू प्लेस दैट की इन द सीक्रेट सेक्शन, क्योंकि दैट आपकी पब्लिक नहीं हो सकती। whatever key that you're generating, it's personal to you and you can only generate it once. जैसे आप वो जनरेट करोगे आप उसे कॉपी करके कहीं स्टोर करोगे because you can't see it after that. And हमारी जो वेब ऐप होगी we're going to be making that using Streamlit. So Streamlit क्या है? Streamlit से आपके लिए एक बड़ी आसानी हो जाएगी कि आप अपनी वेब ऐप बनाना चाह रहे हो तो आपको कोई HTML, CSS और JavaScript वगैरह से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। All you need to do is you need to use Python के functions. तो Streamlit बस एक Python की लाइब्रेरी है जो कि आपको अपनी वेब ऐप्स बनाने देगी। एंड लास्टली हम जो अपना सारा कोड होगा वो GitHub के ऊपर डाल रहे होंगे, एंड GitHub इज जस्ट लाइक के पास जिस तरह गूगल ड्राइव होती है बट फॉर कोड। तो ये आपका जो है कोड फाइल्स को स्टोर करेगा वहां पे, और जैसे ही आप अपनी Streamlit क्लाउड को अपने GitHub से कनेक्ट करोगे तो वो आपकी जो वेब ऐप होगी उसको होस्ट भी कर देगा। यानी कि यू विल बी एबल टू जनरेट अ URL, और वो URL आप दुनिया में कहीं भी यूज कर सकते हो, आप किसी के साथ भी शेयर कर सकते हो, वो बंदा आपकी एप्लीकेशन को यूज कर सकता है। एंड हम जो आज प्रोजेक्ट बना रहे हैं इट्स गोना बी वेरी फन। मैंने इसका नाम रखा है LinkedIn Bio Roaster।
इससे हम क्या करेंगे कि हम बस एक चैटबॉट टाइप चीज होगी आपकी ऐप के अंदर, आप किसी की लिंक्डइन की बायो लिखोगे और बेस्ड ऑन दैट वो आपको रोस्ट करेगा। तो लेट्स सी कि हम ये किस तरह बना सकते हैं। So for that, the first step that you need to do is you need to get a free Grok API key. So let me just start sharing my screen again. अब हम step by step इसको develop कर रहे होंगे and I would need your attention for this. इसका end के ऊपर guide भी मिलेगी, but right now I'm just gonna be doing it through the session. So you need to see कि हम ये किस तरह कर रहे हैं. And by the end of the session, आपके पास एक working app मौजूद होगी. Let me just share my screen again. All right, I hope my screen is visible to everyone. तो हमारी ऐप जो है मैंने जो बनाई है इट्स गोना बी वेरी सिंपल। सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि हाउ इट्स गोना बी लुकिंग। मैंने टेस्ट के अंदर बना के रखी हुई है जस्ट टू शो यू गाइस कि दिस इज हाउ इट्स गोना बी लुकिंग, और इसके बाद हम स्क्रैच से इसको बनाना स्टार्ट करेंगे। तो ये एक लिंक्डइन बायो रोस्टर हमने बना दिया है। हम इसके अंदर सेट कर सकते हैं लेवल्स कि हमने किस लेवल की रोस्टिंग करवानी है। सो दिस इज गोना बी माइल्ड, दिस गोना बी मीडियम, ये सैवेज है और ये ब्रूटल है। तो मैं बस यहाँ गई हूँ। आई एम गोना गो टू माय ओन प्रोफाइल, आई एम गोना कॉपी माय ओन बायो, आई एम गोना पुट इट इन देयर एंड सी कि वो मुझे क्या रोस्ट कर रहा है। दिस इज व्हाट माय बायो इज एंड आई एम गोना गो टू माय ऐप। यहाँ मैं अपनी बायो को जो है ये पेस्ट कर रही हूँ। मैंने इसकी जो है इंटेंसिटी तो ब्रूटल नहीं, चलो हम इसको सैवेज कर लेते हैं। और रोस्ट मी पे मैंने इसे क्लिक किया है तो उसने मुझे एक रोस्ट दे दिया है। कह रहे not a real job, just a fancy way of saying unemployed. Probably plays video games all day. Actually, that's kind of cool. तो बस इसने LLM ने जो है मेरा ये बायो पढ़ी है और इसकी बेस ने मुझे एक ना रोस्ट जनरेट करके दे दिया है। लेकिन अब जो है हम देखेंगे कि ये हमने किस तरह बनाया और हमने किस तरह ये llama 3 को यूज किया टू जस्ट मेक दिस ऐप। और ये दिस इज जस्ट लाइक एन आइडिया, द मेन थीम इज टू जस्ट लर्न कि हम ये करते किस तरह है। इसकी बेस पे आप लोग कुछ भी बना सकते हो जो भी आपको समझ आता है। यूज योर ओन क्रिएटिविटी फॉर दैट। द फर्स्ट थिंग दैट वी गोना डू इज कि हम अपनी इस बिल्ड गाइड में जाएंगे एंड द फर्स्ट थिंग दैट वी नीड इज वी नीड ग्रॉक से एपीआई की निकलवानी। सो व्हाट वी गोना डू इज कि वी गोना गो टू दिस लिंक। I can also share that link with you guys in the meeting chat. If you guys are doing it sat, so you can use this. This is the link. If you're doing it side by side, so use this link and go over here. ऊपर हमारे पास API keys का option होगा. We're gonna click over there and we're gonna create an API key. इसका हम नाम लिख लेंगे। For starters, हम इसका नाम लिख लेते हैं अपनी API key का। Private school regulates a therapy where the notification creates admission. Sorry, somebody saying anything? Never mind. कुछ सबमिट किया है हमने तो इसमें जो है हमें की दे दी है। मैंने इसे कॉपी कर लिया है। मैंने यहाँ पे अपना एक ऑनलाइन नोटपैड रखा हुआ है। आई एम इंस्टेंटली गोना पेस्ट माय की ओवर हियर बिकॉज इसको मैं लूज नहीं कर सकती बिकॉज आई एम ओनली गोना बी एबल टू सी इट वंस। एक दफा हमारे पास की आ गई है तो नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हमने गिटहब के ऊपर जाके अपनी एक रिपोजिटरी बनानी है। नाउ आई एम अज्यूमिंग कि यू गाइस डू हैव अकाउंट्स ऑन गिटहब, लेकिन नहीं भी है तो इजी सीन है। आई एम जस्ट गोना ओपन माय गिटहब प्रोफाइल एंड यहाँ पे मैं एक नई रिपोजिटरी बना लूंगी। आई एम गोना क्लिक ऑन न्यू और रेपो का नेम लिख लेते हैं लिंक्डइन बायो रोस्टर। डिस्क्रिप्शन लिखनी है तो आपने लिख लें। राइट नाउ आई एम स्किपिंग दैट, आई एम गोना कीप द विजिबिलिटी टू पब्लिक और बस क्रिएट कर लिया रिपोजिटरी। ये मेरे पास एक रिपोजिटरी क्रिएट हो गई है। अब इसके अंदर व्हाट आई कैन डू इज आई कैन ऐड द फाइल्स। अब यहाँ पे तो हम क्या कर रहे हैं कि हम गिटहब के ही यूआई के ऊपर अपनी फाइल जो है वो क्रिएट कर लेंगे। लेकिन फॉर लाइक अ बिट मोर एडवांस अगर आपने जाना चाह रहे हैं, दैट्स नॉट एक्चुअली वेरी एडवांस, लेकिन यू कैन ऑल्सो कनेक्ट इट टू
an IDE जिसके थ्रू आप अपना कोड लिखें और रिमोटली अपना जो है वो पुश करें. Right now I am creating a new file. So this is going to be my app.py. इसके अंदर मेरी मेन सारी फंक्शनलिटी जो होगी ऐप की वो पड़ी हुई होगी. I have that code already. वो भी मैंने जो है AI से ही जनरेट करवाया है. वो code, I'm just going to copy that code and paste it over there, and then we're going to quickly go through the contents of what that code includes. ये मेरी जो build guide है उसके अंदर I have included it. That's going to be shared with you all, and you guys can use this to do this on your own time. So I'm just copying all this code and I'm just gonna go back over here and यहाँ पे मैं अपना paste कर दूँगी code. So मेरा code आ गया यहाँ पे. इसका नाम हम रख लेते हैं app.py और branch हमारी main ही है और हम इसको changes को commit कर देते हैं. यहाँ पे मैं अपनी commit के description लिख सकती हूँ. What I did was I just added the app.py file. ये बहुत ही कोई खराब डिस्क्रिप्शन है लेकिन we just in a hurry तो हम जल्दी से कर रहे हैं. तो मेरी app.py वाली फाइल यहाँ चली गई है. इसके कंटेंट्स को हम गो थ्रू करते हैं, लेकिन इसके अलावा हमें एक और फाइल चाहिए which is gonna be the requirements.txt. So requirements.txt फाइल के अंदर क्या होगा, हम सिर्फ अपनी एक्सटर्नल लाइब्रेरीज को इंक्लूड करेंगे कि अगर हमने कोई एक्सटर्नल लाइब्रेरीज यूज की हैं तो वो उनको भी डाउनलोड कर ले when the code's running. तो यहाँ पे हम अपनी सिंस हमारे हम ड्रॉप यूज कर रहे हैं तो we're just using this ताकि it detects that, और हम इसका नाम रखते हैं requirements.txt. Done. कमिट कर दिए मैंने ये चेंजेस पे. ओके, सो अब हमारी जो दो मेन फाइल्स थी दैट वाज ऑल वी नीडेड, वो हमने यहाँ रख दी हैं. अब लेट्स जस्ट क्विकली गो थ्रू हमारे पास की इसका इनके कंटेंट्स क्या है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने स्ट्रीमलेट इंपोर्ट कर लिया है और हमने हाउ डू वी जनरेट द कोड. सो मेरा कोड जो है आप जेमिनाई को या चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट दे सकते हो कि मैं ये ऐप बना रही हूँ और मुझे आप इसके लिए app.py फाइल दे दें, लेकिन राइट नाउ यू डोंट नीड टू जनरेट द कोड. मैंने ये कोड जो है बिल्ड गाइड में ऑलरेडी इंक्लूड किया है. दैट्स गोना बी शेयर्ड विद यू गाइस एट द एंड ऑफ द सेशन. तो आप वहां से डायरेक्टली ये कोड कॉपी कर सकेंगे और यूज कर. तो अब इसके अंदर हमने क्या मेन चीजें इसमें क्या है, हमारे पास प्रॉम्प्ट है. सो आई एम गोना बी अज्यूमिंग कि यू गाइस आर अवेयर व्हाट अ प्रॉम्प्ट इज. बट अ प्रॉम्प्ट इज वर्ड जैसे हम लाइक अगर हम अपनी डेली लाइफ के अंदर से इस वर्ड का मीनिंग निकालना चाहें तो whatever I'm doing or whenever I'm talking to someone, I prompt somebody and then they reply to me. Let's say if I'm talking to my coworker and I say कि you know how was your meeting, तो मैंने उन्हें prompt किया है by asking this question and my prompt is going to trigger their response, like they're going to say बहुत अच्छी हुई meeting. So prompt is what, जब आप अपनी किसी LLM से बात कर रहे हो तो वो बात करने के लिए जो आपने फर्स्ट मैसेज भेजना है जो उसका रिस्पॉन्स ट्रिगर करेगा वो एक प्रॉम्प्ट है. अब आपकी ये पूरी ऐप जिस तरह काम करेगी, आपको किस तरह के रिस्पॉन्सेज मिलेंगे, किस क्वालिटी के रिस्पॉन्सेज मिलेंगे, कितनी डेप्थ में जाके आप बता रहे हो, कितना स्पेसिफिक हो रहे हो, कितने ब्रॉड हो रहे हो, वो सारा कुछ जो है प्रॉम्प्ट डिटरमिन करेगा. आपको सोचने में बहुत छोटी सी बात लगती है एंड यू थिंक कि LLM को तो सब कुछ पता है, उसके पास बहुत डेटा है और मैं कोई बेकार सा या टूटा सा प्रॉम्प्ट उसे लिख के दे देता हूँ और वो मुझे फिर भी अच्छा जवाब दे देगा. तो ऐसा नहीं होता. Based on that, we have a whole thing going on nowadays. If you're aware of the AI scene, there's a term that's called prompt engineering. So this is so crucial. Writing a good prompt is so crucial क्योंकि आपकी prompt या फिर आपके उस message की quality पे depend करेगा कि LLM आपको कितना अच्छा response दे रहा है. उस LLM की पावर्स को यूटिलाइज करने का तरीका ही ये है कि आप एक अच्छा प्रॉम्प्ट लिखो, आप उतने स्पेसिफिक हो जितने आप हो सकते हो और उससे आपको आपकी पसंद के रिजल्ट्स मिलेंगे. तो करंटली हम क्या बना रहे हैं, हम बस एक लिंक्डइन बायो रोस्टर बना रहे हैं. हम उसको बस एक बायो देंगे और बेस्ड ऑन दैट आपको रोस्ट करेगा. लेकिन अब मैंने अपने LLM को बताना है प्रॉपरली कि मुझे कौन से लेवल्स चाहिए. जैसे मैंने बताया कि माइल्ड, मीडियम, सैवेज और ब्रूटल, ये 4 लेवल्स चाहिए, लेकिन उन लेवल्स में तुमने किस तरह का रिस्पॉन्स देना है मुझे. तो दिस इज व्हाट आई एम गोना बी इंक्लूडिंग इन द प्रॉम्प्ट.
तो माइल्ड के अंदर आई हैव टोल्ड देम कि यू आर अ काइंड बट ऑनेस्ट लिंक्डइन बायो रिव्यूअर। तो आपको अपने LLM को उसके उस कैरेक्टर में लेके आना है कि तुम ये हो और फिर बेस्ड ऑन दैट तुम मुझे ये दो। लाइक आप उससे बता रहे हो कि अपने इस कैरेक्टर में आओ एंड बेस्ड ऑन दैट व्हाटएवर नॉलेज दैट यू हैव, बेस्ड ऑन दैट गिव मी अ रिस्पॉन्स। और ये मैंने अपने सारे लेवल्स के लिए किया है। सो दिस इज अ प्रॉम्प्ट दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और उसकी क्वालिटी जो है मुझे मेरी पूरी की पूरी ऐप की क्वालिटी को डिफाइन करी होगी। सो यू हैव टू राइट अ गुड प्रॉम्प्ट एंड यू हैव टू पुट गुड एफर्ट इनटू राइटिंग योर प्रॉम्प्ट। और हम यहाँ भी क्या कर रहे हैं कि हम बस ग्रॉक को जो है समन कर रहे हैं, रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, और बेस्ड ऑन दैट हमें उसका रिस्पॉन्स मिल जाएगा। और अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? हमारा नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए कि हमने अपनी लिंक्डइन की रिपोजिटरी के अंदर अपनी ऐप और की फाइल भी डाल दी है, और हमने अपनी रिक्वायरमेंट्स भी डाल दी हैं जो हमारी एक्सटर्नल लाइब्रेरी इसको डाउनलोड करेंगी। अब हमने क्या करना है कि हमने स्ट्रीमलेट which was basically going to help us make a web app, हमने उसको अपनी GitHub की रिपोजिटरी से कनेक्ट करना है ताकि हमारी ऐप जो है वो होस्ट कर सके। So now what you're gonna do is you're gonna open I'm gonna send Streamlit की cloud का link, you can access it using this link, और इसको आपने अपने GitHub से कनेक्ट करना है। Like when you are signing in, so what you can do is you have to go for, आपके पास different options आएंगे, continue with GitHub, continue with Google, and so on and so forth. You have to click on continue with GitHub so that it's able to connect to your आपकी GitHub की repository very easily. तो currently how things were looking were कि मेरा एक repository है जिसका नाम है LinkedIn Bio Roaster, जिसमें 2 apps हैं, जिसमें 2 files हैं, app file और requirements file. That is about it. लेकिन अब हमने क्या करना है कि हम अपने Streamlit की वेबसाइट पे आए हैं, and you have to click on create app. So after like connecting it to your GitHub, you have to click on create app, and you want to deploy a public app from GitHub. So since हमारी जो repo थी वो public थी, so we're trying to deploy a public app from GitHub, तो हमने इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। Now what's the name of the repository? अब इसने मेरी repositories उठा ली हैं जो public हैं, ये repository जो मैंने बनाई है। ब्रांच मेरा कोड मेन ब्रांच के अंदर है, और जो मेन फाइल है जो मेरी the one we discussed in the beginning, it was called app.py, मैंने इसका नाम लिख दिया है। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है वो हमने यहाँ पे इंक्लूड करनी है, और वो इम्पोर्टेंट चीज क्या है? वो इम्पोर्टेंट चीज है हमारी सीक्रेट। So the secret was the API key that we had generated in the beginning. तो ये हम यहाँ लिख देंगे grok API key, और वो वही की है that we had generated in the beginning. ये की जो है disposable है, I'm going to be deleting it after the session, so that's why I'm just showing it during the session. But लेकिन इसके अलावा it's very confidential, and we should try कि हम अपनी keys जो हैं उनको lightly ना लें और उनको public repositories के ऊपर भी ना रखें. Okay. So this is how ये अब मेरी it's complete. Now what I'm going to do is अपनी apps में गई, अच्छा never mind, I'll have to deploy it once. दोबारा से वही सारी शबान करेंगे। मेन ऐप का नाम था app.py, और यहाँ पे अपनी सीक्रेट where we included API key in repository में हमने अपनी API key include नहीं की, हमने अपनी app.py के अंदर उसको मेंशन किया कि इसको यहाँ से हम एक्सेस करेंगे, जो Streamlit कनेक्ट करेगा उसको, लेकिन हम अपनी रेपो के अंदर नहीं इंक्लूड करते हैं क्योंकि इट्स अ पब्लिक रिपोजिटरी। हम अब Streamlit को दे रहे हैं कि दिस इज अ सीक्रेट, और ये हमने यहाँ से दोबारा कॉपी की, यहाँ आए, पेस्टेड इट, बस हो गया। आई डोंट नो व्हाई इट्स गिविंग दिस इनवैलिड फॉर्मेट इशू, इट्स सेइंग कि ये टॉमल वाला फॉर्मेट यूज करो, लेकिन दिस इज अ टॉमल फॉर्मेट, सो इट शुड वर्क। वेट,
save कर दिया मैंने इसको. So let's see. I'm going to click on deploy and see if it works. ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या इशू आ रहा है? App and coordinate error also enables directly to prevent deletes. ये क्या है? ब्लॉक को इंपोर्ट नहीं कर पा रहा. Let's go back and see. ये हमारे पास इशू क्या आ रहा है? The issue is कि मैंने इसका स्पेलिंग्स गलत लिख दिए हैं. जी की जगह मैंने क्यू यूज कर दिया. That's about it. इशू फिक्स कर चुके हैं हम. अपनी चेंजेस को कमिट करेंगे. ठीक हो गया. वापस आएंगे. दोबारा से रिसोर्स को डिप्लॉय करना स्टार्ट किया आफ्टर आई फिक्स्ड. Oh, it worked. तो अब हम क्या करेंगे कि अब हम यहाँ पे हम अपना लिंक्डइन का बायो लिखेंगे. अब आई कैन इधर यूज माइन और व्हाट आई कैन डू एक्चुअली इज कि मैं अपने लिंक्डइन के ऊपर गई हूँ और आई एम जस्ट गोना रैंडमली लाइक किसी भी बंदे का डाल देती हूँ. सो दिस इज Sundis Khalid. Sorry Sundis, but we're gonna have to use your bio as a test. इनकी बायो जो है ये हमने कॉपी कर ली है यहाँ तक और हम देखते हैं कि मेरी ऐप ने क्या रोस्ट बनाए हैं इनके लिए. दिस इज इट. यहाँ पे मैंने इनकी बायो को पेस्ट कर दिया और सैविज पे मैंने रखा है इसको. आई एम सेइंग रोस्ट मी. अब इसने रोस्ट निकाल दिया. Sundis Khalid, another leader on LinkedIn, works at Google, big deal. Used to work at Amazon, okay. Got awards, who doesn't? Forbes featured you, congrats, you're famous now. First female in your family to graduate, good for you. Talks about diversity because that's what everyone does. Gives lots of talks, hope somebody listens. Makes educational content because YouTube needs more videos. Helps people negotiate job offers, nice hobby. But seriously, $1.4 million negotiation is actually kind of impressive. तो ये इसने आपके लिए Sundis Khalid के लिए एक रोस्ट निकाल दिया. No offense to anyone, but this was just to test कि इस तरह से काम कर रहे हैं. और आप इसके जो लेवल्स हैं वो आप एडजस्ट कर सकते हैं और वो एडजस्ट किस तरह होंगे वो हमारे प्रॉम्प्ट के थ्रू होंगे बिकॉज हमने प्रॉम्प्ट में बताया हुआ है कि ब्रूटल के अंदर इस लिमिट तक जाना, माइल्ड में इस लिमिट तक जाना. ओके. It says roast Musa Raza Abdi. So let's just go and check. तो हम इनकी प्रोफाइल पे गए हैं. He's working as a founder at AI Data Yard. तो अब हम इनकी बायो में आ गए एंड हमने इनकी बायो कॉपी की है और ये बायो हम जाके अपनी ऐप के अंदर पेस्ट कर रहे हैं. ये आ गई और अब इसको भी हम थोड़ा सैविज पे रखते हैं और ये रोज रहे लगे. Musa, another AI expert. You're a consultant, big deal. You help teams. Wow. Your services are one-stop solution. How original. You give boot camps, training, and solutions. Yawn. You talk about AI literacy and adoption. Who doesn't? You like working with users. Cool story. You're not a hype guy. Sure. You want to connect. How surprising. But hey, at least you're not using Comic Sans. All right. So this was a roast on him. तो इसके थ्रू आप इस तरह कुछ और फन रोस्ट्स निकाल सकते हो. यू कैन यूज डू इट फॉर योर फ्रेंड्स. अगर मैं आपको अपनी इस ऐप का लिंक सेंड करूं सो विदाउट हैविंग एनी ऑफ द डिटेल्स दैट आई डू, अगर आप अपने पास ओपन करेंगे तो ये आप भी यूज कर सकते हैं. सो हाउ कूल इज दैट कि आपने अपनी लाइक लिटरली द सेशन स्टार्टेड एट 9 और मैंने कुछ टाइम अपने इंट्रो वगैरह में भी लगाया लेकिन 9:30 तक वी हैव अ फुल फंक्शनिंग ऐप जो कि हमने एक API की से अपने LLM को एक्सेस किया और हमने बना लिया. और अब दिस वाज जस्ट एन आइडिया राइट, लेकिन आप अपना प्रॉम्प्ट चेंज करो, आइडिया चेंज करो तो आप कितना कुछ बना सकते हो. सो दिस वाज अ वेरी लाइट वेट session on how you can just build something with AI. This was not anything revolutionary, but this is a start to that point.
So that was from my side. Now